Good morning, students. So today we will start with the second chapter of civics, that is role of government in health. Yes. So basically, in this chapter, we are going to learn what role government play regarding to health in our country. For example, in the last chapter, you have learned कि equality के regarding government का क्या role है, उनके constitution में क्या provisions हैं. Yes. So let's start with the chapter. This is introduction. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and the problems related to health. Look at the subheadings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of the government? So basically, not only to the health, but जो health related problems होती हैं उसमें government का क्या role है, how government functions, that we are going to study in this chapter. So let's proceed. So before starting this chapter, the very important point which comes is what is health. Now, health we कैन थिंक हेल्थ. अच्छा, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं हेल्थ क्या है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो वी आर हेल्थ, बट सिर्फ इतना डिफिनीशन नहीं है हेल्थ का. हेल्थ इज़ ए ब्रॉडर टर्म. सी, we can think of health in many ways. Health means our ability to free of illness and injuries. ये एक short definition है कि what is health. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of the other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if the people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will prone to illness. So what they are saying कि suppose if is ये जो collage दिया हुआ pictures का, this is not, health is not only about being free from illness. It is also related to the factors, यानी वो factors जो affect करते हैं health को, that is also related to the health. So as you can see in the collage, जो फैक्टर्स यानी जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हेल्थ को, क्या इफ़ेक्ट करता है? योर सराउंडिंग. इफ़ यू आर लिविंग इन अ क्लीन सराउंडिंग, इट मीन्स you are more likely to be healthy. But if you are living in a not so clean surrounding, yes, you are likely to fall ill more. Yes, drinking condition. Yes, all of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are part of health. So not only the free from illness, ठीक है, ये तो हेल्थ की मीनिंग है कि यार हमारी एबिलिटी कि हम फ्री रह सके फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. बट नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो मीन्स कि हम कैसे इन्वामेंट में रह रहे हैं. मतलब आइदर इट इज़ ए पोल्यूशन फ्री और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, व्हाट टाइप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वी आर गेटिंग, आइदर इट इज़ ए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और नॉट सो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब फूड वी आर गेटिंग, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है या नहीं, है ना. नहीं मिलता है तो क्या होता है, माल न्यूट्रिशन की कमी देखी जाती है, स्पेशली इन द चिल्ड्रंस. यस, एंड बिसाइड्स, ये तो हुए फिजिकल फैक्टर्स.
मेंटल स्ट्रेंथ यानी मेंटली भी आप कितने फिट हो, आप कितने स्ट्रेस फ्री हो, दैट ऑल्सो काउंट दी हेल्थ. तो हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल फिटनेस, इट इज़ द मेंटल फिटनेस. एंड हेल्थ इज़ ऑल्सो अबाउट फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं हेल्थ को. Next, we will see healthcare in India. So, there is a table given over here. Okay, I am going to explain this table. India has the largest number of medical. So, before that, basically in this table, you can see two columns are given. Yes, this column can be described as positive aspects and this is the negative aspects, which means क्या पॉजिटिव है हमारी कंट्री में रिलेटेड टू दी हेल्थ एंड व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स. तो कॉन्ट्रेरी बेस पे दिया हुआ है. तो आई विल रीड आउट द 1 point फ्रॉम हेयर and 1 point from here and I will explain simultaneously. So the point number 1, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. So India is a medical college where the largest number, we have the largest number of medical colleges in our country. एंड हर साल जितने डॉक्टर्स बन के निकलते हैं तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द डॉक्टर. मतलब यू कैन इमेजिन अप्रॉक्सीमेटली every year 15,000 new doctors qualify in our country to be a doctor. But on the contrary, क्या हो रहा है कि इतने सारे डॉक्टर्स एक साल में बनने के बाद भी what we are facing जो डॉक्टर्स, देखो डॉक्टर की एज वी नो डॉक्टर इज़ a long, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है इतनी लंबी पढ़ाई होती है, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना होता है. यस, सो फॉर अर्निंग मनी वेयर दिस डॉक्टर विल सेटल, ऑब्वियसली दे विल लाइक टू सेटल इन द अर्बन एरिया जहाँ पे लोग उसने ज़्यादा फीस दे के, है ना, उनको फीस दे सके. दे विल नॉट लाइक टू. सो द प्रॉब्लम अकर्स कि वी आर हैविंग नंबर्स ऑफ कॉलेजेस, वी आर हैविंग नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बट most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to population is much less in rural areas. So point number 1 says we have the number of medical colleges, we are the largest producer, we have the मतलब 15,000 पर ईयर हमारे यहाँ से डॉक्टर बन के निकल रहे हैं. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर इन अर्बन एरिया. एंड जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं उन्हें आज भी कई किलोमीटर्स ट्रैवल करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. एंड रूरल एरियाज़ में या तो वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से उतने डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं. Now we come to the point number 2. Healthcare facilities have grown substantially over the year. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,280. देखो पहले पॉइंट में हमने देखा हमारे पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे बनकर कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि हर साल हॉस्पिटल, द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. 1950 में जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल्स थे, वहीं 1991 में इट बिकम्स टू 1,117 और 2000 में वो 18,218 हॉस्पिटल्स हो गए. Yes, so the number of hospitals is growing substantially over the years. But negative aspects क्या कहता है? About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged
Since independence, almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number isn't decreasing. So we point is हम हॉस्पिटल्स के नंबर तो बढ़ा रहे हैं, बट वहीं पे हमारी कंट्री में हर साल ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी से 5 लाख लोग मरते हैं. यस, हर साल 2 मिलियन केसेस आते हैं मलेरिया के. ये सब क्यों होते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड देम एडिक्वेट लिविंग कंडीशंस. के पास वो सराउंडिंग्स नहीं अवेलेबल हैं. यस. Point number third says India gets a larger number of medical tourists. For many countries, they come for treatment in some of the hospitals in India that compare the best in the world. Now, what do you mean by the term medical tourist? Tourist तो आपको पता है क्या होता है? टूरिस्ट जो दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, जब वो हमारी कंट्री में घूमने आते हैं, उन्हें कहते हैं टूरिस्ट. तो मेडिकल टूरिस्ट किन्हें कहा गया? वो लोग जो हमारी कंट्री में आए फॉर अ टूर, बट नॉट फॉर सीइंग आवर कंट्री, बट बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीज़न. यानी हमारी कंट्री में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इलाज करवाने के लिए आज भी बाहर से लोग आते हैं. जो इलाज करवाने के लिए दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आते हैं, उन्हें कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट. सो देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल्स इतने अपडेट नहीं है ना. हमारे हॉस्पिटल्स इतने अपडेट हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड clean drinking water to all. 21% of all communicable disease are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. So we are facing कि large number of medical tourists हमारे कंट्री में आ रहे हैं. हमारी कंट्री की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है ना, उस हॉस्पिटल्स की. बट बेसिक नेसेसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, we are not able to provide that to all the people. And 20% of all the communicable disease are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. And the last point, India is the third largest producer of medicine in the world and is also a large exporter of medicine. So India is a country where the medicine produce comes on the third largest in the world. और हम एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, we also export these medicines to the other country. But on the contrary, half of all the children in India do not get adequate food to eat, are undernourished. So we are producing a good amount of medicines, but we are not able to provide good quality of food to our children in the country. Yes. So let's proceed further. Okay. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood bank, etc. that can provide the required care and services that patients need. In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can devise, diagnose, and treat illness. We also need the medicines and equipments that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. So हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? Yes, हॉस्पिटल सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबॉरेटरीज़ चाहिए,
जहाँ पे टेस्ट हो सके, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स जहाँ पे इजीली अवेलेबल ब्लड्स हो. यस, देन वी ऑल्सो नीड्स वर्कर, नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल जो हमारा इलाज कर सके, हमें हमारी बीमारी को दूर भगा सकें. एंड वी ऑल्सो नीड्स मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स to treat the patients. So if these things are available in any country, then that country might be able to take care of their people. Yes. Now, as we have seen in the above, India has a large number of doctors, clinics and hospitals. Yes, because we are the largest producer of the doctors, है ना. हर साल हॉस्पिटल्स तो बढ़ ही रहे हैं नंबर्स में. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज in running a public healthcare system. This is a system of hospital and health centers run by government. So here comes your point number 1. What is public healthcare system? It is the healthcare system with hospitals and health center that is run by the government. So basically इस चैप्टर में आप 2 हेल्थ केयर सिस्टम यानी 2 हॉस्पिटल्स सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट. सो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होते हैं? वो सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल दैट इज रन बाय द government. It has the ability to look after the health of a large section. Its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in country. So why this public healthcare system is important? Because this is a system which reaches to the विलेज टू विलेज, वो गांव तक जाके और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तक एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ही है जो अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पाता है. तो वी हैव सीन दिस पॉजिटिव. बट हाउ एवर दिस सेकेंड कॉलम पॉइंट्स यानी जो हमने सेकेंड पार्ट देखा था वो टेबल में ऊपर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर the health situation in our country is. With all the our positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. So we have developments in our healthcare facilities, but फिर भी वो healthcare facilities is not available for all. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. In this chapter we will look at this reason for this. So basically इतना सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स होने के बाद भी जहाँ पे मेडिकल टूल्स, जो बेसिक लोग हैं, जो स्पेशली द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब कि एक इक्वालिटी के साथ, एक इक्विटी के साथ सब तक ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाते हैं. अब हम 2 स्टोरीज़ देखेंगे. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. मैं आपको, आप ये रीड कीजिएगा, मैं आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ. हकीम शेख जो था वो एक मेंबर था PBKMS, इट स्टैंड फॉर पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. तो वो जब एक दिन इवनिंग 1992 की एक इवनिंग को उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड वो उसकी हेड इंजरीज हो जाती है. ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन और उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. लोग उसे लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं कोलकाता में, बट वहाँ पे उसे एडमिट करने से मना किया जाता है. क्या कह के मना कर दिया जाता है? हमारे पास अभी खाली बेड नहीं है. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पर्सन मरने की कंडीशन में है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसको लेकर लोग पहुँचते हैं तो कहा जाता है हम एडमिट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेयर बेड. वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ वो लोग मना कर देते हैं कि वी डोंट हैव फैसिलिटी टू दिस. और कोई फिर दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो लोग मना कर देते हैं वी डोंट हैव ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो आपका ये ट्रीट कर सके.
सो इस तरीके से ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, किसी ने भी उसको एडमिट। फाइनली उसे खुद को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा जहाँ उसने ट्रीटमेंट उसे मिला, बट इसकी वजह से ऑब्वियसली इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, उसे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया उसका। और उसने इसी ये जो रवैया अपनाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, इसको अपनाने से हकीम शेख ने PBKMS यानी उसकी जो समिति थी जिसका वो मेंबर था, उनके साथ मिलकर उसने कोर्ट में इनके खिलाफ केस फाइल किया। यस, और इसका डिसीजन यही आया था कि गवर्नमेंट को उसको जो उसका खर्चा है वो रिफ़ंड करना पड़ा और उन्हें वापस एक लुक बैक करना पड़ा कि व्हाट आर देयर फॉल्स जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हुई। यस, एक और स्टोरी है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। ओके, सो ये भी मैं आपको समझा रही हूँ। देवर 2 फ्रेंड्स, अमन एंड रंजन, है ना। रंजन वॉज फ्रॉम दी अ वेल टू डू फैमिली जिनके पास कोई कमी थी, एंड अमन वॉज फ्रॉम द फैमिली वेयर दे वर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑल्सो, उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। So, hi Aman, good to see you back. How have you been? So these friends are meeting after their summer vacation in their school. So Ranjan, who was from the well-to-do family, he is asking from Aman, और बताओ तुम्हारे कैसे रहे। तो अमन बताता है कि मुझे फीवर हो गया था और मुझे हॉस्पिटल जाना था। Then Ranjan says, oh my god, me too. I just got back to the school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. See, रंजन वही कह रहा है कि मतलब हॉस्पिटल जाना उसके लिए देखो कितना एक्साइटिंग था। क्यों? वी विल सी। रंजन बता रहा है द बिल्डिंग लुक्ड, यानी जिस वो हॉस्पिटल में गया था, बिल्डिंग लुक सुपर्ब। आई थॉट इट वॉज अ 5-star होटल। Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facilities. Daddy had to pay ₹500 at the reception counter itself before we even meet the doctor. There was a nice music playing and everything was clean and shiny. The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. Yes, and after the test result came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had a viral fever. He prescribed some medicine and rest. So as you can see, Ranjan अपनी जो स्टोरी बताता है उसके अकॉर्डिंगली जब वो वहाँ पहुँचता है हॉस्पिटल में, तो अपने पापा के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ऐसा लगता है कि क्या पॉश बिल्डिंग है, क्या नज़ारा है यहाँ का। तो जब वो अंदर जाते हैं तो रिसेप्शन पे ही उन्हें ₹500 पे करना पड़ता है। डॉक्टर्स भी बहुत सारे टेस्ट लिख लेते हैं, वो लोग टेस्ट करवाने जाते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ टेस्ट के रिजल्ट आने पर डॉक्टर बताता है कि एक्चुअली में ठीक है, कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट अ कॉमन वायरल फीवर। और उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस आते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रंजन। अब वी विल सी अमन। यस, वो बताता है, जैसे रंजन पूछता है कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे। देन अमन वाज सेइंग इट वाजंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वाज टू मच टाइम। वाई इट टेक्स टू मच टाइम? बिकॉज फॉर देम दे विल गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हमने जो लास्ट चैप्टर में भी देखा था, जो कांता थी वो जब अपनी बेटी को लेके गई हॉस्पिटल तो उसे एक बहुत लंबी लाइन में खड़ा हुआ। तो और यस, जब अमन बताता है कि एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू वेट इन लॉन्ग queue at the OPD counter. I was feeling so sick and I had to lean on Abba all the time. When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test, and we had to go and stand in another long queue. People were crowding around in testing room too. We got the test result after 3 days and went back to the hospital. There was a different doctor that day. उसने उसको चेक किया and then he said, okay, you had a viral fever.
एंड है ना, और उसने एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन उसको लिख दी। तो रंजन कहता माई हॉस्पिटल वॉज सो नाइस बट दे गेव मी मेनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। Oh, my treatment did not cost much. So basically, in this story we are saying कि जो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, वहीं पर रंजन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वहाँ पे उसको रिसेप्शन की फीस ले लिया जाता है, उसे बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं, मतलब उसे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं, बट एट लास्ट डॉक्टर बताता है कि नहीं आपको सिर्फ वायरल फीवर है, पर उसके लिए भी बहुत सारी दवाई दे देता है। वहीं पे जो अमन होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे लाइंस बड़ी होती हैं, डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट लिखता है। अच्छा देखो, रंजन के केस में ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सेम डे मिल जाता है, यहाँ पे उन्हें 3 दिन बाद फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यस, सो देयर इज अ स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, public and private healthcare services, which we will see in our next part of the chapter. Thank you, student. Keep studying.